In the last video on IUPAC nomenclature, we studied the rules for naming alkanes, straight chain as well as branched ones. Now, in today's video, we will be learning IUPAC nomenclature of alkenes and alkynes. Now, what are alkenes and what are alkynes? So, alkenes are those hydrocarbons that contain double bond, carbon-carbon double bond specifically. And alkynes are those hydrocarbons that contain carbon-carbon triple bond. So now we will learn the rules to name them according to IUPAC nomenclature. So let us get started with the first rule. So same rule, select the longest possible chain. So longest possible chain is the one thing that you have to follow here also. Longest possible chain, but keeping in mind that it should contain both the carbons of double bond and triple bond. Longest possible chain that should contain both the carbons of double bond or carbons of जो भी है, if it is alkene then double bond, if it is alkyne then triple bond, double bond or triple bond. So I'll give you an example for the same. For example, if this is the compound CH3, CH2, CH2, C double bond CH2, CH2, CH3. Now, how do we select the longest possible chain? So we will select the longest possible chain which includes both the bonds of double bond, both the carbons of double bond, यानी कि ये दोनों. So according to that, this is our longest possible chain of carbon atoms. This is the longest possible chain. Now, if you do it like this, now this one contains, जो मैंने अभी ली है, it contains 5 carbon atoms. But if I select this one as the longest possible chain, one second, let me show you this. So if you can see, this includes only this carbon of double bond, while this is not included. Or you can do it like this. If you think you can do it like this, so this also is not possible. This is not the way. I guess I have written the wrong this thing. No, it is correct. Yes. So if you see, if you select it like this, so this is wrong. Like, you know, you're taking only one carbon of the double bond, which is a wrong way to select the longest possible chain. So this is the correct way. Now, after you have chosen longest possible chain, what would you do? So next is the see, now I'm taking up example in which there is only one double bond or one triple bond. So right now I'll be taking up only those examples. Later on we will be studying the cases in which we will be having multiple bonds, maybe two double, two triple, or one double, one triple. But right now focusing on one double or one triple bond. So after selecting the longest possible chain, what do we do next? So next is to learn, first of all, the suffix also. See, again, the same thing. This nomenclature will contain the three things, that is word root, that is suffix, and the prefix. Now, prefix here again will be the substituent. Word root will denote the longest possible chain, and suffix for alkenes, it is -ene. For alkynes, it is -ine. ये तो very important, very simple and very basic thing. Word root, for example, here it was 5 carbon chains. So word root here will be pent. Right? So after doing this, what you have to do? Second is numbering of the chain. Numbering of the chain. Now, numbering is done in such a way so as your double bond or triple bond gets the lowest number. Numbering of the chain.
give lowest possible number to double bond or triple bond whatsoever is present. Now here, for example, double bond tha. So let me take the same example again, and that was this one: CH3, CH2, CH2, C double bond, CH2, CH2, CH3. So this was my longest possible chain. So while numbering it, I will number it like this: 1, 2, 3, 4, 5. This way my double bond gets one position, first position. And if I number it the other way, like 1, 2, 3, 4, 5, then my double bond gets the fourth position. देखिए जब हम डबल बॉन्ड की नंबरिंग करते हैं तो हम ऐसे चेक करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट कार्बन हम जिधर से नंबर कर रहे हैं, जो फर्स्ट कार्बन आ रहा है डबल बॉन्ड का, सी सी डबल बॉन्ड और सी सी ट्रिपल बॉन्ड का, जो फर्स्ट कार्बन आ रहा है उसको कौन सी नंबरिंग मिल रही है. जब मैं इधर से कर रही हूँ तो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, एंड जब मैं इधर से कर रही हूँ ये फर्स्ट कार्बन बन रहा है डबल बॉन्ड का, सो विच इज गेटिंग फोर्थ number. So this numbering is wrong and above numbering is correct. So I am erasing this red wala numbering and following the अपना जो हमारा है जो मैंने बताया that is the correct. So this way it gives the your this thing least number to the double bond, right? Now after that, very simple, बाकी जो रूल्स है सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह के लिए दे आर सिमिलर. सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग के एवरीथिंग दे आर वेरी सिमिलर टू दोस that we studied in the case of alkanes. Now let us write the names, let us practice the name. Now for example here, यहाँ पे देखिए कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इथाइल. कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, 2 पे. सो इट इज 2 इथाइल. सो इसका नेम क्या होगा, सेम वही, पहले प्रीफिक्स लिखा जाएगा. प्रीफिक्स क्या होगा आपका, सब्स्टिट्यूएंट जो कि है अल्काइल यानी कि इथाइल ग्रुप, 2 इथाइल. नाउ 5 कार्बन चेन पेंट. मेंशन द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, 1 ene, pent dash 1 ene. This is how we will name this compound: 2 ethyl pent 1 dash pent 1 dash ene. Ene suffix, pent word root, 2 ethyl prefix, right? And position हमें डबल बॉन्ड की जरूर स्पेसिफाई करनी है. सो आई विल बी टेकिंग अ फ्यू मोर एग्जांपल्स फॉर द सेम. चलिए और एग्जांपल कर लेते हैं. CH3 CH double bond CH CH2 CH3. Now इसमें there is no substituent, straight away the chain is the straight chain. Only focus of over here would be numbering. So if I number it like this, this gives the carbon containing double bond. इसका जो first वाला carbon है उसको second number मिलता है. And if I do it like this, then यहाँ से ये आ जाता है फर्स्ट कार्बन, ये बन जाता है, इट गेट्स द थर्ड नंबर. सो दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ नेमिंग, दिस इज द राइट वे ऑफ नंबरिंग. सो इन दिस केस अब यहाँ पे कोई प्रीफिक्स नहीं होगा बिकॉज कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है. सो दिस पर्टिकुलर केस विल कंटेन वर्ड रूट प्लस सफिक्स ओनली बिकॉज देयर इज नो सब्स्टिट्यूएंट ओवर हियर. ये एक स्ट्रेट चेन अल्कीन है. सो यहाँ पे वर्ड रूट अगेन पेंट होगा. Why? Because 5 carbon atoms are pent and position of double bond is 2. Pent 2 dash ene is the name of this compound. So let us take up another example. CH3 CH double bond CH CH3 CH3. Now again over here मैंने जैसे बोला हमें नंबरिंग ऐसे करनी है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्ट करने के बाद कि आपके डबल बॉन्ड का जो फर्स्ट कार्बन आता है उसको मिनिमम नंबरिंग मिले. इसमें सब्स्टिट्यूएंट को कोई भी नंबरिंग मिले डजंट मैटर. सो इफ आई नंबर इट दिस वे 1 2 3 4 5, so this carbon gets second number. And if I number it 1 2 3 4 5, then ये जहां से ये स्टार्ट होता है, इधर से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, it gets third position. So this is wrong, this is करेक्ट. एंड 4 पे क्या लगा हुआ है, प्रीफिक्स लगा हुआ है, आई मीन सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है मिथाइल. सो इसका नाम हो जाएगा 4 डैश मिथाइल पेंट. 4 डैश मिथाइल प्रीफिक्स, पेंट वर्ड रूट, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 2 डैश इन इज दी सफिक्स. ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल और कर लेते हैं.
फिर हम कुछ अल्काइन के एग्जाम्पल भी कर लेते हैं जिसमें ओनली ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। सो दिस इज CH3, अभी ये मैं करवा रही हूँ अल्कीन का ही एग्जाम्पल, डबल बॉन्ड CH3 CH3 CH3. So longest possible chain containing double bond is this. Now after selecting this numbering 1 2 3 4 5, अगर मैं ऐसे करती हूँ 1 2 3 4 5, इस वे में थर्ड नंबर मिलता है, इसको इधर मिलता है 2, सो ये प्रेफर होगी, ये हमारी गलत होगी। एंड हमें ये देखना है कौन कौन सी पोजीशन पे कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं। सो आई एम राइटिंग दिस एग्जांपल again and writing it like this and numbering it again 1 2 3 4 5. so यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला मिथाइल सेकंड पोजीशन पे है, ये दोनों मिथाइल फोर्थ पोजीशन पे। तो जैसे हमने अल्केन में सीखा था 2 पे मिथाइल, राइट, एंड 4 पे एक मिथाइल, एंड फिर एक और मिथाइल 4 पे। सो हमारे प्रीफिक्स क्या बन जाएंगे 2,4,4 डैश ट्राई मिथाइल। एंड कार्बन चेन अगेन पेंट, यानी कि 5 कार्बन की है, पेंट, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 2 suffix e. So this is the name of this alkene. So let us take example of alkynes now. So alkyne ले लेते हैं CH3 सिंपल वन, ये ले लेते हैं CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये ले लेते हैं। अब इसमें जैसे मैंने बोला लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन तो दिख रही है, लेकिन इसमें हमें क्या बोला था मैंने, नंबरिंग हमें इसको मिनिमम देनी है। तो यही करेक्ट होगी, बिकॉज अगर आप ऐसे दोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड को थर्ड नंबर मिल रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर मिल रहा है, तो अब नंबरिंग इज करेक्ट। ना 4 कार्बन की चेन है, अच्छा प्रीफिक्स नहीं है बिकॉज यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ, आप देख सकते हैं। सो ब्यूट, ब्यूट किस पोजीशन पे लगा हुआ है आपका, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे, ब्यूट डैश 1 आइन। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं CH3 H C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगेन नंबरिंग का ऑर्डर रहेगा, यही आपकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है ये वाली, this is the because it contains double bond, sorry triple bond 3 4। अब ऐसे ही नंबरिंग करेक्ट है, बिकॉज अगर मैं ऐसे नंबरिंग करती हूँ तो अगेन इसको मिलता है ट्रिपल बॉन्ड को थर्ड पोजीशन, ऐसे मिलती है फर्स्ट पोजीशन, तो ये गलत हो गया। एंड इसीलिए मैं इस वाली नंबरिंग को इरेज कर रही हूँ, ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग दिस नंबरिंग, ठीक है। तो नंबरिंग लिखने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट जॉब, टू राइट दी नेम। यहाँ पे देखिए ध्यान से, थर्ड पे है मिथाइल, तो प्रीफिक्स हमारा हो गया मिथाइल 3 डैश मिथाइल ब्यूट 1 ब्यूट 1 आइन। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। एक और लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं एक अल्काइन का, CH3 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आए हमारी, यही लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है, वो ये है। अब नंबरिंग का ऑर्डर यही रहेगा जिसमें ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। सो ट्रिपल बॉन्ड का मिनिमम नंबर ऐसे मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट वे। सो यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप, 3 मिथाइल हैं, एक है फोर्थ पोजीशन पे, 2 है थर्ड पोजीशन पे। सो 3 3 4 डैश ट्राई मिथाइल, सी यू हैव टू राइट इन वन लाइन, मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ बिकॉज आई डोंट हैव स्पेस, पेंट 1 आइन। सो इसका नाम हो गया ये। अब आ जाते हैं ऐसे केसेस पे दैट कंटेन मोर देन 1 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स, या हम कह सकते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं इनको, दैट कंटेन more than 1
डबल बॉन्ड, कौन सा डबल बॉन्ड? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आई एम टॉकिंग अबाउट, और वन और मोर देन वन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगेन ट्रिपल बॉन्ड कौन सा? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब ये देखिए, अब एक तो बात है अगर दो डबल बॉन्ड हो, देयर आर टू डबल बॉन्ड्स, तो सफिक्स बदल जाता है। टू डबल बॉन्ड्स हो देन सफिक्स बिकम्स डाइन, एंड अगर हो आपके दो ट्रिपल बॉन्ड्स तो सफिक्स बन जाता है डाइन, डी बाई आइन, डाइन। ठीक है, ऐसे ही अगर तीन हो तो ट्राइन एंड ट्राइन, ठीक है, TRIENE एंड TRYNE। ठीक है, अब नंबरिंग कैसे करें? लॉन्गेस्ट पॉसिबल, सारा कुछ रूल सेम है वही। सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन कंटेनिंग दी मल्टीपल बॉन्ड, जिसमें दोनों बॉन्ड्स आ जाए हमारे, वो हमारी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होगी फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब आपने ये कर लिया, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्ट कर ली, कंटेन। नाउ व्हाट अबाउट द नंबरिंग थिंग? नंबरिंग कैसे करें? अब मैं अगेन यहाँ पे केस ले रही हूँ। चलिए पहले मैं इसमें आपको बता देती दो केसेस। एक केस है कि दोनों डबल बॉन्ड हो, और एक केस है दोनों ट्रिपल बॉन्ड हो। एक केस है एक डबल हो एक ट्रिपल हो। सो अब नंबरिंग हमें करनी है इन केस ऑफ, यहाँ पे दो केसेस दे देते हैं, लोकेंट्स रूल फॉलो करने। सेकंड मैं बता देती हूँ अच्छे से, नंबर द चेन according to lowest set of locants rule, set of locants rule। अब यहाँ पे केस वन, if same type of bonds are present, मतलब या तो दोनों डबल हैं या ट्रिपल है। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, या फिर CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, जैसे ये। तो क्या करना है हमें इसमें? लोकेंट्स रूल फॉलो करना है। ठीक है, लोकेंट्स रूल तो उसमें भी फॉलो होगा जिसमें एक डबल एक ट्रिपल होगा, बट उसमें एक और बात है इंपॉर्टेंट, उसमें अगर लोकेंट्स रूल फेल हो जाए तो क्या करना है? चलिए हम यहाँ करते हैं, अब लोकेंट्स रूल का लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। 1 2 3 4, यहाँ पे कार्बन को मिला फर्स्ट पोजीशन एंड यहाँ पे कार्बन को मिला थर्ड पोजीशन, डबल बॉन्ड वाले को। अगर मैं करती हूँ 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 3 है, तो ये सेम है। तो यानी कि इसको तो मैं इधर वे करूं, आई विल गेट दी सेम आंसर। ठीक है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका नाम हो जाएगा, अच्छा अब इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है अगेन बिकॉज कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सो इसका नाम होगा, अब देखिए इनके नाम ऐसे लिखे जाते हैं, जब जहां डाइन डाइनाइन होना वहां ब्यूट नहीं होता वर्ड, वहां होता है ब्यूटा, ब्यूटा पेंटा हेक्सा, ऐसे होता है ब्यूटा 1,3 dash डाइन। इन द सेम वे 1 2 3 4 5, इसमें भी आप जब नंबर करेंगे तो देखेंगे 1 2 3 4 5, इधर वे 1 and 4 ही बन रहा है सेट ऑफ लोकेंट्स यहाँ, तो कोई भी सही रहेगा। यहाँ पे हमारे 5, तो पेंटा डैश 1 4 डाइन, जस्ट अ सेकेंड, डाई, आई थिंक यहाँ पे मैंने आई मिस करा है, दिस इज DIYNE। ठीक है, तो ये ऐसे हम करते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल इसके कर लेते हैं हम, जिसमें ज्यादा डबल और ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब फॉर एग्जांपल 2 डबल 2 ट्रिपल मुझे देखने पड़ेंगे, एक बनाना कुछ चेक सम एग्जांपल्स फॉर द सेम।
Okay, I am trying to find out some examples. चलिए, यहाँ पे 3 है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2. तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ करने पे 1 2 3 4 5 6. देखिए यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, यहाँ पे भी फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ, तो सेम ही आ रही है. तो हमारा ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6. हेक्सा किस किस पोजीशन पे है? 1 3 5 ट्राइन, क्योंकि 3 आपके हैं इसमें ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट फ्यू मोर एग्जांपल जिसमें हमारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स हो, बट मैं आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट. जस्ट अ सेकंड. Okay, wait. I'll try to find out some more examples of this name if I could get. I had to show you the Locans wala thing, so that's why I'm trying to find out, but ironically I'm not able to. Okay, let me try it myself. CH2 CH double bond CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. चलिए ये एग्जांपल ले लेते हैं. 1, अब इसमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जैसे दिख रही है वैसे ही है. 1 2 3 4 5 6. इसमें लोकेंड्स बना सेकेंड एंड फिफ्थ, 2 and 5. इसमें 1 2 3 4 5 6. इसमें लोकेंड्स बनते हैं नीचे वाले ऑर्डर में, ऐसे वाले ऑर्डर में ये बन रहे हैं, ऐसे वाले ऑर्डर में बन रहे हैं 1 and 4. मैं यही दिखाना चाह रही थी कि जब लोकेंड्स भी जैसे अबव केसेस में लोकेंड्स दोनों में से सेम आ रहे थे, यहाँ पे देखिए लोकेंड्स डिफरेंट आ रहे हैं. ऊपर वाले वे से 2 5 आ रहा है, नीचे वाले वे से 1 4 आ रहा है. सो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट. सो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा 1 4 डैश डाइन. सो व्हाट आई सेड इज कि अगर 2 डबल बॉन्ड या 2 ट्रिपल बॉन्ड हो तो आपको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड्स रूल ही फॉलो करना है. सो क्या करना है हमें? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड्स. मैंने पहले भी बताया यहाँ पे, ठीक है. अब आ जाता है केस 2, व्हेन बोथ द बॉन्ड्स आर डिफरेंट. मतलब एक डबल है एक ट्रिपल है, ठीक है. जैसे ये केस है CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH डबल बॉन्ड CH. सो सेम सेट ऑफ लोकेंड्स रूल ही फॉलो होगा. फर्स्ट इज लोकेंड्स रूल, तो करना ही है ट्राई हमें यहाँ पे भी. लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा हो कि आपको सेम सेट मिल रहा है बोथ वेज से, तो डबल को प्रेफरेंस देनी है या ट्रिपल को प्रेफरेंस देनी है. उसके अलावा जो सफिक्स लिखना है यहाँ पे, तो अब इन आइन दो सफिक्स हो जाएंगे. सो इन पहले लिखा जाएगा या आइन पहले लिखा जाएगा, ठीक है. सो वो हमें यहाँ समझना. व्हेन बोथ द बॉन्ड्स आर डिफरेंट, फर्स्ट थिंग लोकेंड्स रूल फॉलो करने के बाद देख लेते हैं यहाँ पे करके 1 2 3 4 5. सो ऐसे नंबर करने पे ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट मिलती है, डबल को. सो ट्रिपल बॉन्ड गेट्स दी फर्स्ट पोजीशन एंड डबल बॉन्ड गेट्स दी फोर्थ पोजीशन, यानी कि हमारा जो लोकेंड बना वो 1 4 के सेट बन गया. 1 2 3 4 5 ऐसा करने पे हमारा जो डबल बॉन्ड है उसको मिल रहा है फर्स्ट पोजीशन एंड ट्रिपल बॉन्ड को मिल रही है फोर्थ, यानी कि सेट अगेन बन गया 1 4 का. सो अब यहाँ पे क्या करें? सेम सेट बन गया यहाँ पे भी.
जब दोनों डबल बॉन्ड्स थे या दोनों ट्रिपल थे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई भी ऑर्डर ले लो एक ही बात थी। यहाँ पे क्या किया जाए, तो इस केस में ऐसा किया जाता है, देखिए करना हमें लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट्स रूल फॉलो है ऑलवेज, लेकिन अगर वो फेल हो रहा है, फेल इन द सेंस कि अगर सेम सेट आ रहा है तो क्या करना है, सो सेम सेट ऑफ लोकेट्स is obtained, so preference is given to double bond. If same set of locants is obtained, preference is given to डबल बॉन्ड। जैसे अगर आपको याद हो, मैंने अल्केन्स की नेमिंग में बताया था, अगर एक मिथाइल और एक इथाइल है और दोनों वे ऑर्डर नंबरिंग करने से एक ही सेट बन रहा है, तो हमें इथाइल को प्रेफरेंस देनी है ओवर मिथाइल, यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है ओवर ट्रिपल बॉन्ड। प्रेफरेंस इज गिवन टू डबल बॉन्ड, यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिलेगा वो ऑर्डर फॉलो करेंगे, यानी कि ये ऑर्डर फॉलो होगा, ये ऑर्डर फॉलो नहीं होगा। सो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें नोट करने वाली कि दिस विल बी गिवन दी प्रेफरेंस, यानी कि हमारा ऑर्डर होगा 1 2 3 4 5। अब लिखना कैसे है, व्हाट अबाउट सफिक्स, सफिक्स के लिए ऐसा आएगा, कंसीडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ अल्काइंस, कंसीडर्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ अल्काइंस। व्हाट डज इट मीन, ये मतलब ये है कि अल्कीन्स पहले लिखे जाते हैं, अल्काइंस बाद में, मतलब जो चीज लास्ट में लिखी जाती है हम वही मेन कंपाउंड मानते हैं। हमारा जो मेन कंपाउंड है अल्काइन, यानी कि अल्काइंस के थ्रू ये डबल बॉन्ड, मतलब पहले अल्काइन था, अल्काइन का ही डेरिवेटिव बन के बीच में डबल बॉन्ड आया है। सो फॉर दिस एज एन एग्जांपल आई विल बी राइटिंग इट एज pent position of specify the positions of double bond and triple bond। pent पहले डबल बॉन्ड की बात कर रही हूं मैं, क्योंकि हम ट्रिपल बॉन्ड बाद में लिखेंगे। पेंट 1 पे है, इन 4 आइन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, मैंने क्या बोला था, डेरिवेटिव ऑफ सफिक्स कैसे लिखा, मैंने लिखा डेरिवेटिव ऑफ अल्काइंस, ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया व्हाट आई मेंट बाय राइटिंग दिस डेरिवेटिव ऑफ अल्काइन। तो मतलब इन पहले लिखा, आइन बाद में लिखा, प्रीफिक्स है नहीं क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है, जब आपका जो ये लास्ट वाला सफिक्स होता है, ठीक है, सो बेसिकली इसमें 2 सफिक्स हो गए। सो जो आपका लास्ट वाला सफिक्स होता है, अगर ये वॉवल हो या फिर ये वॉवल साउंड वाला हो, तो जो हम इससे पहले वाला सफिक्स होता है उसका जो ई होता है उसको ड्रॉप कर देते हैं। सो यानी कि दिस बिकम्स पेंट 1 in 4 आइन। I'll give you one more example for the same. चलिए, HC ट्रिपल बॉन्ड C CH3 CHC H डबल बॉन्ड CH2। चलिए इसकी नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5। ऐसा करने पे मेरे डबल बॉन्ड को आ रही है फर्स्ट पोजीशन एंड ट्रिपल बॉन्ड को आ रही है फोर्थ पोजीशन। 1 2 3 4 5 ऐसा करने पे भी सेट सेम बन रहा है। फर्क इतना है कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड इज गेटिंग लोअर नंबर एंड डबल बॉन्ड इज गेटिंग हायर नंबर। यहाँ डबल बॉन्ड इज गेटिंग लोअर नंबर एंड ट्रिपल बॉन्ड इज गेटिंग हायर नंबर। सो दिस विल बी प्रेफर्ड, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड। सो हम इसको इरेज कर देते हैं। सो ये होगी हमारी वो। अब इस केस में प्रीफिक्स है एक हमारा मिथाइल, तो उसको जैसे लिखते थे वैसे ही लिखेंगे, 3 मिथाइल। वर्ड रूट अगेन 5 कार्बन का, तो पेंट। अब पहले मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ अल्काइन है तो पहले इन लिखा जाएगा। इन की पोजीशन क्या है, ये 1। सो 1 इन का ई ड्रॉप कर देंगे, डैश स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड 4 आइन। सो द नेम विल बी 3 मिथाइल पेंट 1 इन 4 आइन। ठीक है, चलिए और भी केस है, एक और केस लेते हैं। ओके, सो CH ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH
CH डबल बॉन्ड CH। तो इसमें डबल भी है, इसमें ट्रिपल भी है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब देखते हैं। अब हम वही पहले तो अपना ऑर्डर ऑफ देखते हैं, लोकेंट्स क्या बन रहे हैं इसमें, 4 5 6। जब सेट सेम आएगा लोकेंट्स का तभी हमने इनको प्रेफरेंस देनी है, नहीं तो हमें सिर्फ लोअर सेट ऑफ लोकेंट्स रूल फॉलो करना है, ठीक है। अभी ऐसे करने पे सेट बन रहा है 1 3 5 1 3 5। ऐसे करने पे 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे करने पे बन रहा है 1 3 5। अब क्या करें, दोनों में सेट सेम बन रहा है 1 3 5। यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सेट ही सेम बन रहा है। तो बट यस, फर्क इतना है कि जब हम ऐसे कर रहे हैं, ये वाले वैसे कर रहे हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिल रही है एंड डबल बॉन्ड्स को जो है वो 3 और 5 मिल रही है। और जब मैं ऐसे कर रही हूं तो हमारा जो डबल बॉन्ड्स हैं उनको फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन मिल रही है, ऐसे करने पे ट्रिपल बॉन्ड को फिफ्थ। तो अगेन प्रेफरेंस यहाँ पे इसको दी जाएगी, इस वाले वे को, जिसमें डबल बॉन्ड्स आर गेटिंग, डबल बॉन्ड इज, एक तो ले रहा है 1 पोजीशन, दूसरा ले रहा है 3 पोजीशन एंड ये ले रहा है 5। जबकि ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, वो वाले केस में ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट मिल रही थी और 2 डबल बॉन्ड्स को ये मिल रही थी। तो इसको प्रेफर करेंगे हम। तो अब लिखेंगे कैसे, 6 कार्बन की चेन है, देखिए दो डबल बॉन्ड्स हैं, कौन सी पोजीशन पे, 1 एंड 3। तो डाइन हो गया, डाइन आ गया उनके लिए, तो इसलिए हेक्सा लगेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। डैश पोजीशन क्या है, 1 एंड 3, 2 डबल बॉन्ड्स है, डाइन, ठीक है, डाइन। एंड फिफ्थ पोजीशन पे हमारा आइन है। सो मैं एक काम करती हूँ कि मैं इस वाली को इरेज कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो इस नंबरिंग को, ठीक है। 5 आइन, अगेन मैंने डाइन का ई जो है वो ड्रॉप कर दिया। सो दिस इज हाउ वी नंबर organic compounds containing more than one double or triple bond. So this was all about it. So the next time, the next video will be on the naming of compounds containing maybe functional group, or I might be taking up cyclic one. Actually मैं cyclic जो hydrocarbons है उनको मैं later on लेना चाहती हूँ, इसीलिए I will focus on naming of organic compounds with functional group, but functional group simple. So जो एलिफेट जो हमारे closed chain alkanes हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, and we will be taking up functional groups next.